بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ اردو کی 8th کلاس کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور سبق نمبر 10 جس کا نام ہے اتفاق اور نا اتفاقی۔ آج اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے مرکزی خیال، خلاصہ اور تشریح اور ایکسرسائز ساری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ نے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس لیسن سے ریلیٹڈ جو پیپر میں بھی امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو آپ نے ان کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ میں نے لاسٹ میں امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں اور آپ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ نظم کے شاعر کا نام ہے نسیم امروی اور ان اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی ہم تبھی کریں گے جب ہم ان اشعار کی تشریح شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو اچھے انداز سے بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپس میں مل کر رہنے سے زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہر کامیابی کا راستہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے ہی بنتا ہے۔ جو آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے وہ بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ بارش کے ایک قطرے کی کوئی اہمیت نہیں مگر جب یہی قطرے آپس میں ملتے ہیں تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ عقل اور سمجھ والا کبھی بھی اتحاد و اتفاق سے دامن نہ چھڑائے گا۔ اس کے برعکس جو نا اتفاقی پیدا کرے گا اپنی زندگی خود ہی بد مزہ کرے گا۔ اگر مل کر بیٹھنے کی شان باقی ہے تو کبھی کسی دشمن کا ڈر و خوف نہ ہوگا کیونکہ بربادی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں نا اتفاقی ہو۔ تم ہر حال میں اچھے رہ سکتے ہو اگر تم اتحاد و اتفاق سے رہو۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز سے اتحاد و اتفاق کا سبق ملتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ آپس میں متحد ہو کر رہنا ہی زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ شاعر نے مختلف انداز سے اجتماعی زندگی میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے سے انسان کی شان مرتبے رتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے کبھی کسی بات کا ڈر نہیں رہتا، اس کی زندگی میں سکون و اطمینان رہتا ہے۔ اس کے برعکس نا اتفاقی سے صرف پریشانی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلا اشارہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہی کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ مشکل الفاظ ہے۔ نیک اس کا مطلب ہے اچھے بہترین، دل کا ایک ہونا اس کا مطلب ہے متحد ہونا، لطف کا مزہ ہے مطلب ہے مزہ۔ اس شعر میں شاعر اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مل کر رہنے کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے، ہر کام میں برکت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ جب خلوص دل سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، کبھی کسی کام کا لطف بالا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی سے کام کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ ایکا کا مطلب ہے اتحاد، اتفاق، رستہ کہتے ہیں راہ کو، کام آنا کا مطلب ہے مدد کرنا۔ تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے کامیابی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، اگر اتحاد و اتفاق نہ ہو تو بڑی بڑی منازل اور مقاصد کا حصول انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان قوموں نے ہی کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو متحد اور متفق رکھا اور ہر مشکل کا سامنا بہادری سے کیا۔ شعر نمبر 3 ہے۔ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے باری ہوں ہزاروں پر۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے قسمت کے مارے اس کا مطلب ہے بری قسمت والے، باری کا مطلب ہے غالب، مثل کا مطلب ہے مثال، مقولہ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ان پریشان حال اور قسمت کے مارے لوگوں کے لیے رحم کی دعا کرتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف پریشانی، دکھ اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے زندگی بسر کی جائے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب دو مل جاتے ہیں تو کئی لوگوں پر بھاری ہوتے ہیں، یعنی جب آپس میں اتحاد و اتفاق ہوتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ الفاظ ہیں۔ بوندیں کہتے ہیں بارش کے قطرے، بکھر کر اس کا مطلب ہے پھیل کر، ایک دم اس کا مطلب ہے فوراً، طوفان اٹھانا، جل تھل کرنا، آفت مچانا۔ اس شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک خوبصورت مثال کے ذریعے اتحاد و اتفاق کی مزید اہمیت بیان کرتا ہے کہ بارش کے ایک یا دو قطروں کی الگ الگ کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جب بارش کی بوندیں مل کر زمین پر گرتی ہیں تو ہر طرف جل تھل اور طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک تنہا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب وہ دوسروں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق سے رہتا ہے تو وہ ہر مشکل اور ہر دشمن کو زیر کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے۔ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ الفاظ ہے۔ شان کا مطلب ہے مرتبہ، عزت، بربادی کا مطلب ہے تباہی، نا اتفاقی کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، مل بیٹھنا کا مطلب ہے اکٹھے ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر آپس میں مل بیٹھنے کو انسان عزت اور مرتبہ خیال کرتا ہے تو سوچ کے حامل افراد کو کبھی کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا۔ اتحاد و اتفاق سے ہر دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے، اس کے برعکس آپس میں نا اتفاقی اور نفاق ہو تو بربادی
मुकद्दर बन जाती है। गर्ज के इत्तेहाद इत्तफाक कामयाबी और ना इत्तफाक की बर्बादी का जरिया है। शेर नंबर 6 है, सबक देती है हर शय जिंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। मुश्किल अल्फाज है। शय का मतलब है चीज़, ज़िंदगी के कारखाने इसका मतलब है दुनियावी मामलात, मिलाप का मतलब है ताल्लुक मेल जोल, सबक का मतलब है नसीहत और ताकत कहते हैं कुव्वत को। इस शेर में शायर कहता है कि कुदरत के निज़ाम में हर शय से हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक का सबक मिलता है। गौर करो तो पता चलता है कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, ज़मीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, रात के वक्त चमकने वाले सितारे, बागों में महकने वाले फूलों की कितारें हमें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खूबसूरत दिखाई देती हैं क्योंकि इनमें मिलाप की सिफ्त मौजूद है। आपस का इत्तेहाद ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसमें सवालात के मुख्तसर जवाब आपने देने हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या आप मिलकर रहने के 2 फ़ायदे बता सकते हैं? तो पहला फ़ायदा, मिलकर रहने से इंसान की क़ुव्वत में इजाफा होता है। नंबर 2 है, मिलकर रहने से हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, ईका से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, ईका से मुराद है यानी मिलजुल कर इत्तेहाद से रहना। सवाल नंबर जी में, बूंदें मिलकर तूफान कैसे उठा सकती हैं? तो इसका जवाब है, बूंदें मिलकर मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी से इकट्ठे कतरे आसमान से बरसते हैं कि तूफान आ जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, मिलाप को ज़माने की बड़ी ताकत क्यों कहा गया है? तो उसका जवाब है, मिलकर रहना एक बहुत बड़ी ताकत की गमाज़ी करता है। जो मिलजुल कर रहते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1 और 1 11 होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। उसमें सबसे पहला MCQs है, मिलकर रहने के नतीजे क्या होते हैं? तो इसका जवाब है नेक होते हैं। दूसरा है, कामयाबी का रास्ता दिखाना है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे ई का। मिसल मशहूर है, 2 मिल के बारी हों। तो इसका आंसर आप लगाएंगे हज़ारों पर। बिखर कर सूख जाती हैं। तो इसका आंसर लगाएंगे बूंदे। ना इत्तफाकी का नतीजा होता है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे बर्बादी। ज़माने में सबसे बड़ी ताकत है, उसका आंसर आपने लगाना है मिलाप। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, जुमलों में आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला अल्फाज है नतीजा, इसका जुमला है ना इत्तफाकी का नतीजा बर्बादी है। नंबर 2 है लुत्फ, जिंदगी का लुत्फ मिलकर रहने में है। अगला अल्फाज है कामयाबी, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मिसल का मतलब है मिसल का जुमला, मिसल मशहूर है। 1 और 1 11 होते हैं। लास्ट है तूफान, गर्मियों में बहुत आंधियां और तूफान आते हैं। उसके बाद अगला सवाल है लफ्जों का खेल। सवाल नंबर 4 है, दिए गए अल्फाज के 5 ग्रोही अल्फाज तहरीर करें। सबसे पहला अल्फाज है जंगल, तो उसके अलावा लिखेंगे दरख्त, परिंदे, जानवर, शेर। गार और हस्पताल का लिखेंगे डॉक्टर, नर्स, दवाएं, मरीज, बीमारियां। तालिबे इल्म, इसमें आएगा पढ़ाई, किताबें, कलम, इम्तिहान, बस्ता। क्रिकेट, इसमें आप लिखेंगे टीम, बल्ला, गेंद, खिलाड़ी, विकेट। बाजार में आप लिखेंगे दुकानें, सड़क, फल फरोश, गाहक, दुकानदार। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 में दर्जा झैल अल्फाज के मुतशाबा अल्फाज लिखें। जैसे आम है तो इसका आप लिखेंगे, एक होता है खाने का आम, एक होगा एक आम, एक होता है पीर और एक होता है पैर। हलाल, एक होता है हलाल खाने वाली चीज़ और एक हलाल कहते हैं चांद को। मीना, एक होता है परिंदा और एक मीना होता है बारिश। और अलम कहते हैं झंडे को और एक अलम होता है गम। उसके बाद सवाल नंबर 6, हम दर्जा झैल शेर में तशबीह तलाश करें। शेर है, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। तो इस शेर में जवाब आपने लिखना है, शेर में दिल को चिराग से तशबीह दी गई है क्योंकि दिल भी बुझा रहता है और गरीब का चिराग भी तेल ना होने की वजह से बुझा रहता है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, मदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़े और इसमें वक़्फ़ की मुख्तलिफ अलामात लगाएं। ये हम लोग पहले भी इबारत कर चुके हैं, यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ, आपने ऐसे ही एज इट लगाने हैं और इसी तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो निशान मैं लगा देती हूँ, अहमद नबील और फातिमा स्कूल गए। इसके बाद आपने लगाना है, फिर वापस चले गए यहाँ, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। समझ नहीं आया क्यों, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो कुछ भूल गए थे, ये भी क्वेश्चन है तो इसमें सवालिया निशान लास्ट में लगाएंगे, भूल गए थे। और उसके बाद लास्ट में आपने हतमा लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल करने से पहले आपको बता दूं कि हम जमा मिक्सर उसको पढ़ेंगे तब उसको सवाल नंबर 8 है उसको हल करने के काबिल हम होंगे। तो जमा मिक्सर क्या होता है, अगर वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद इसम के हरूफ की सूरत या तरतीब बदल दी जाए या वाहिद के बाज़ हरूफ में इजाफा कर दिया जाए तो इससे तरह बनने वाले जमा अल्फाज को जमा मिक्सर कहते हैं। तो सवाल नंबर 8 भी आपने इसी के अकॉर्डिंग करना है। आपने इस अल्फाज की जमा तहरीर करनी है। जो नीचे आपको अल्फाज दिए गए हैं, नू, बैत, तूर और ये सारे अल्फाज जो आपके सामने हैं, आपने उनको जमा मिक्सर में तब्दील करना है। तो जवाब में आपने कुछ इस तरह लिखना है, नू लिखना है, उसका लिखेंगे अनवा, बैत का लिखेंगे बियूत, दूर का लिखेंगे अदवार, आम का लिखेंगे अवाम और हास का लिखेंगे हवास। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, इत्तफाक के फ़वाइद पर चंद जुमले लिखें। तो इसका आंसर आपने इस तरह लिखना है। जुमला नंबर 1 है, इत्तफाक से ताकत बढ़ती है। उसके बाद अगला है, मिलकर काम करने से वो जल्दी मुकम्मल हो जाता है।
नंबर 3 है मिलकर बड़ी ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। नंबर 4 है इत्तेफाक से रूब में इजाफा होता है। और नंबर 5 है मिलजुल कर रहने से खाने पीने, खेलने, पढ़ने और तकरीबात का मज़ा आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी जो नज़म थी उसकी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आपके साथ वो चीज़ें शेयर करनी है जो इस लेसन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में भी आ सकती हैं। कॉपी पेंसिल बुक ले आए और निशान लगाना शुरू कर दे। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपने उनको नोट डाउन कर लेना और उनको याद कर लेना ताकि पेपर आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएं। सबसे पहले आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूँगी। एमसीक्यूज नंबर 1 है वहीं कुछ लुत्फ होता है, जहाँ एक होते हैं तो इसका जवाब लिखेंगे दिल। नंबर 2 है हर मुश्किल में काम आता है, तो इसका आपने लिखना है ईका। उसके बाद है दो मिलकर भारी हों हज़ारों पर, तो इसका लिखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी मसल पर। उसके बाद नेक्स्ट है जो मिल जाती हैं तो फिर तूफान उठाती हैं, तो इसका जवाब आपने लिखना है बूंदे। अगला है वहीं होती है बर्बादी जहाँ है, तो यहाँ पे आपने लिखना है ना इत्तफाकी। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की बाकी है, तो इसका आपने जवाब लगाना है शान। ज़िंदगी के कारखाने में सबक देती, तो इसका आपने लिखना है हर शय। बर्बादी का मुतरादिफ लफ्ज़ है, तो इसका लिखेंगे तबाही। मलाप का मुतजाद है, इसका मतलब है जुदाई। नज़म में किस्मत के मारू से क्या मुराद है, तो उसका जवाब आप लिखेंगे बदकिस्मत। सूख जाना का मुतरादिफ लफ्ज़ है, तो इसका होगा खुश्क होना। दर्ज झैल में से मुतशाबह अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है, तो इसका लिखेंगे ऑप्शन सी। एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसे करार देना कहलाता है, तो इसका आपने लिखना है तशबिया। उसके बाद है अजमल शेर की तरह बहादुर है, जुमले में अजमल को तशबीह दी गई है, तो इसका आपने लिखना है जवाब शेर। उसके बाद दर्ज झैल में से नेक्स्ट सख्ता की अलामत है, तो इसका आपने ऑप्शन लगाना है सी बी पर। दर्ज झैल में से सुकून की अलामत है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। रमूज जमा है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए रमज की। रमूज का मतलब है, तो इसका लगाएंगे जवाब आप ऑप्शन सी ऑप्शन बी अशारा। किस जुमले में सख्ता की अलामत इस्तेमाल हुई है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए पर। उसके बाद नेक्स्ट है नो की जमा है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी। दौर की जमा है, तो इसका लगाएंगे ऑप्शन ए पर निशान। उसके बाद नेक्स्ट है ख़ास की जमा है हवास, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है अशार पढ़कर दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाना है। ये अशार आपके सामने दिए गए हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना है और नीचे दिए गए आंसर आपने क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। बूंदे का मुतरादिफ लफ्ज़ है, तो इसका होगा कतरे। वो बूंदे जो बिखर कर एकदम सूख जाती हैं, तो इस मिसरे में बूंदों के सूख जाने की वजह क्या है, तो इसका आंसर होगा बिखरना। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है ज़िंदगी के कारखाने से मुराद है, तो इसका जवाब आपने लगाना है ऑप्शन ए पर। उसके बाद है अगला एमसीक्यूज़ है जहाँ नाइतफाकी हो वहाँ होती है, तो इसका आपने जवाब लगाना है बर्बादी। सबसे बड़ी ताकत ज़माने में है, तो इसका आंसर आपने लगाना है ऑप्शन ए मलाप। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इस नज़म की हैं वो शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगी आपने याद कर ली होगी। साथ साथ उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।